We were looking in our last study at Romans chapter 1 and verse 20 and trying to see the difference between the mind and the heart. हम अपने पिछले अध्ययन में रोमियो अध्याय 1 और वचन 20 को देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मन और हृदय में क्या अंतर है, Or the soul and the spirit. या प्राण और आत्मा में क्या अंतर है। And I was mentioning how people in the world use their mind to speculate, and it says here they became futile in their speculations, the last part of Romans 1:21. मैंने ये उल्लेख किया था कि संसार के लोग अपने मन का उपयोग कल्पनाएं करने में करते हैं, जैसे कि रोमियो 1:21 के अंतिम भाग में लिखा है, वे अपनी कल्पनाओं में व्यर्थ हो गए। And the foolish heart was darkened. और उनका मूर्ख हृदय अंधकारमय हो गया। So here's the contrast between the mind and the heart. तो यहाँ मन और हृदय के बीच एक विरोध दिखाया गया है। The mind goes into speculation, imagining it must be like this, and they think that they know everything, but they don't. मन कल्पनाएं करने में लग जाता है, यह सोचने में कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, और उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते। And in spiritual things we don't, unless we open ourselves to God's revelation in the scriptures, then our heart gets darkened. और आत्मिक बातों में हम भी नहीं जानते जब तक कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन की प्रकटित सच्चाई के लिए खोल न दे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा हृदय अंधकारमय हो जाता है। So it's good when we approach the scriptures to acknowledge that our mind cannot understand everything. Jesus said once in Matthew 11 verse 25, he said, I thank you, Father, that you have hidden these wonderful truths from those who are clever and intelligent. इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र के पास आते हैं तो ये स्वीकार करना अच्छा है कि हमारा मन सब कुछ नहीं समझ पाता। यीशु ने मत्ती 11:25 में एक बार कहा था, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये अद्भुत बातें बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा रखी। Not because cleverness and intelligence can hinder us from knowing the truth, but because cleverness and intelligence tend to make us proud. यह इसलिए नहीं कि बुद्धिमानी और समझदारी हमें सत्य को जानने से रोकती है, बल्कि इसलिए कि बुद्धिमानी और समझदारी हमें घमंडी बनाती है। And it's the pride that blinds us. It's the pride that makes our heart dark. और यही घमंड हमें अंधा कर देता है, यही घमंड हमारे हृदय को अंधकारमय कर देता है। God reveals His truth to the humble. परमेश्वर अपना सत्य नम्र लोगों पर प्रकट करते हैं। You have hidden these things from the clever and intelligent and revealed them to babes. तूने ये बातें बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा रखी और बालकों पर प्रकट की है। Babes are those who acknowledge, I don't know. We don't know anything. बालक वे हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। And so when we come to God like that, we understand the truth of God. Otherwise, verse 22 of Romans 1, we will profess to be wise and we will become fools. और जब हम परमेश्वर के पास इस प्रकार आते हैं तो हम उसकी सच्चाई को समझते हैं, अन्यथा रोमियो 1:22 के अनुसार हम अपने आप को बुद्धिमान कहेंगे और मूर्ख बन जाएंगे। And that's why a lot of people in the world don't understand the way of salvation. और इसलिए बहुत से लोग संसार में उद्धार के मार्ग को नहीं समझते। Because they don't open their heart to what God wants to say. They think of their mind all the time. क्योंकि वे अपने हृदय यह सुनने के लिए नहीं खोलते कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, वे हमेशा अपने मन से ही सोचते रहते हैं। And when that happens, when we begin to use our mind and begin to think what God must be like, without revelation from God, we get all types of wrong concepts of God. और जब ऐसा होता है, जब हम अपने मन का उपयोग करते हुए यह सोचने लगते हैं कि परमेश्वर कैसा होगा बिना परमेश्वर की प्रकटित सच्चाई के, तब हम परमेश्वर के बारे में हर प्रकार की गलत धारणाएं बना लेते हैं। And then it says in Romans 1:23 that human beings then exchange the glory of the incorruptible God for an image. फिर रोमियो 1:23 में लिखा है कि मनुष्य अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसी प्रतिमा में बदल देते हैं। See, God is so vast and so great that you cannot make an image of Him. देखिए, परमेश्वर इतना महान और व्यापक है कि उसकी कोई प्रतिमा बनाई ही नहीं जा सकती। No, it is impossible. God is a spirit. How can you make an image of God? यह असंभव है। परमेश्वर आत्मा है और आप परमेश्वर की प्रतिमा कैसे बना सकते हैं?
And when we don't realize that, the Bible says in Romans 1:23 that man begins to make an image of this invisible, incorruptible God in the form of corruptible man. और जब हम यह नहीं समझते तो बाइबल कहती है कि मनुष्य इस अदृश्य अविनाशी परमेश्वर को एक ऐसी प्रतिमा में बदल देते हैं जो नाशवान मनुष्य के समान है। We try to make a God who looks like a man, or like birds, or like four-footed animals, or like crawling creatures like snakes or something. हम ऐसा परमेश्वर बनाना चाहते हैं जो मनुष्य जैसा दिखे, या पक्षियों जैसा, या चौपाइयों जैसा, या रेंगने वाले जीवों जैसे, जैसे कि सांप आदि। And when we imagine that God is like this, we have degraded him. और जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा है तो हमने उसे नीचा दिखाया है। God is beyond all this. Man was created by God. How can you make a man who looks like God? परमेश्वर इन सब से परे है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो फिर कोई मनुष्य ऐसा कैसे बना सकता है जो परमेश्वर जैसा दिखे? And certainly no animal looks like God. Even the most handsome man in the world is not an incarnation of God. और निश्चित ही कोई पशु परमेश्वर जैसा नहीं दिखता, चाहे वह कितना भी दुनिया का सबसे सुंदर मनुष्य परमेश्वर का अवतार नहीं ले सकता। So that's why in the Old Testament God spoke so much to his people in Israel against trying to make anything an image of any form representing God. इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों से बराबर कहा कि वे कोई भी प्रतिमा न बनाए, कोई भी ऐसी चीजें न बनाए जो परमेश्वर का रूप दिखे। It was one of the commandments. You shall not make an image of me because it's not possible. यह उसकी आज्ञाओं में से एक था, तू मेरी कोई प्रतिमा न बनाना, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। God is vaster than this whole universe. परमेश्वर इस पूरे आकाश मंडल से भी बड़ा और महान है। And we degrade him, it says, when we bring him down to the level of things that we can see. And that's why it's wrong for us to make any type of image or idol or picture to represent God. और जब हम उसे किसी ऐसी चीज के स्तर पर लाते हैं जो हम देख सकते हैं, तो हम उसे नीचा कर देते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र बनाना गलत है, ताकि हम कहें कि यह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। God is invisible, incorruptible, and we cannot make him in the form of, we cannot make an image of him in the form of anything visible or corruptible. परमेश्वर अदृश्य है, अविनाशी है, और हम उसे किसी भी दृश्य या नाशवान रूप में नहीं बना सकते। It's very important. We recognize, sense God in our spirit. We cannot see him with our eyes. यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर को अपनी आत्मा से महसूस करते हैं, हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते। Jesus Christ, when he came to earth, was a manifestation of God. यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो वे परमेश्वर की प्रकट अभिव्यक्ति थे। And when he said, "If you have seen me, you have seen the Father," that is what we need to see of the Father: the nature, the goodness, the humility, the love, the purity, the lowliness, the attitude of service that was manifested in Christ. और उन्होंने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो हमें पिता में क्या देखना चाहिए? उसका स्वभाव, उसकी भलाई, उसकी नम्रता, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता, उसका दीनता और उसकी सेवा करने की भावना। यही हमें देखनी है। यह सब जो मसीह में प्रकट हुआ। The spirit of sacrifice. That is what we can understand of God. God himself is spirit. बलिदान की आत्मा, यही वह है जिससे हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। परमेश्वर स्वयं आत्मा है। And when people degrade God like this, that means they don't give God the honor that's due unto him. It says in verse 24, God gave them up, the lust of their hearts, to impurity. Now, 3 times in this section, we read this expression, God gave them over. और जब लोग परमेश्वर का ऐसा अपमान करते हैं, तो इसका मतलब है कि वे उसे वह आदर नहीं देते जो उसे मिलना चाहिए। तो वचन 24 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके हृदय की वासनाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इस अध्याय में 3 बार यह वाक्य आता है, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया।
First of all, in verse 24, पहली बार वचन 24 में, and then in verse 26, फिर वचन 26 में, and then again in verse 28. और फिर वचन 28 में। It's like God withdrawing His grace and His mercy. यह ऐसा है जैसे परमेश्वर अपना अनुग्रह और करुणा उनसे हटा लेते हैं, And God gives them up because they don't want Him. You see, God does not force anyone to have Him in their lives. If they don't want Him, He won't force Himself into their lives. वह उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वे उसे नहीं चाहते। देखिए, परमेश्वर किसी को भी मजबूर नहीं करते कि वे अपने जीवन में उसे रखे। अगर कोई उसे नहीं चाहता तो वह अपने आप को उसके जीवन में बलपूर्वक नहीं लाएंगे। And then He gives them up. It's not that He wants to give them up. God loves this world so much. He loves people of every nationality, of every religion. God is almighty. He created them and He loves all of them. फिर वह उन्हें छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन्हें छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर तो इस संसार से बहुत प्रेम करते हैं। हर जाति, हर धर्म के लोगों से वह प्रेम करते हैं। But He gives up those who don't want Him. लेकिन वह उन्हें छोड़ देते हैं जो उसे नहीं चाहते। He will not force His way into your life if you don't want Him. वह बलपूर्वक अपने आप को आपके जीवन में नहीं लाएंगे यदि आप उन्हें नहीं चाहेंगे। This principle of I stand at the door and knock is always true. When it says God gave them up, it's because they didn't want Him. यही सिद्धांत है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यह बिल्कुल सत्य है। जब लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया तो इसका कारण यह था कि उन्होंने स्वयं उसे नहीं चाहा। Because they would not honor Him as God or give Him place in their lives. Therefore He gave them up. उन्होंने उसे परमेश्वर के रूप में आदर नहीं दिया और न ही अपने जीवन में उसे स्थान दिया, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। And when God gives people up, what happens? They go into all types of sin. और जब परमेश्वर किसी को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वे हर प्रकार के पापों में गिर जाते हैं। See, sin comes when our contact with God is broken. It's like when there's a break in the electric wire, the lights go off. देखिए, पाप तब आता है जब हमारा संपर्क परमेश्वर से टूट जाता है। यह ऐसा है जैसे बिजली की तार टूट जाए और बिजली चली जाए। The contact is gone. And when a man's contact with God is broken, it's like an electric wire getting broken. And then the lights go off. Or the telephone goes dead. Because there's a break in the telephone wire. संपर्क टूट गया। जब मनुष्य का संपर्क परमेश्वर से टूट जाता है तो यह बिजली की तार के टूटने जैसा होता है और फिर अंधकार छा जाता है, या जैसे टेलीफोन का तार कट जाए और फोन बंद हो जाए। So it's like that. When there's a break in our connection with God, darkness comes in. And then what happens? We go into impurity and to all the lusts of their hearts. We dishonor our bodies with all types of filthy sins that destroy our bodies. यह बिल्कुल वैसा ही है। जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटता है तो अंधकार आ जाता है और तब क्या होता है? मनुष्य अशुद्धता में चला जाता है और अपने हृदय की वासनाओं के अनुसार जीने लगता है। वे अपने शरीर का अपमान करते हैं हर प्रकार के गंदे पापों से जो उनके शरीर को नष्ट कर देते हैं। And the reason is because they gave up the truth of God and worshipped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. और इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को छोड़ दिया और सृष्टिकर्ता के स्थान पर सृष्टि की आराधना और सेवा करने लगे, जो सृष्टिकर्ता युगानुयुग धन्य है। See, one of the common sins of man is that we give more importance to man than to God. देखिए, मनुष्य के सामान्य पापों में से एक है पाप यह है कि वह मनुष्य के परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं। What does it mean to worship and serve the creature more than the Creator? That means you give more importance to a human being than you give to God. सृष्टिकर्ता के स्थान पर सृष्टि की आराधना और सेवा करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप किसी मनुष्य को परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं। That means you want to please a man, but you don't want to please God. Then you are worshiping and serving the creature rather than the Creator. And when that happens, your heart will be darkened. आप मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते, तब आप सृष्टि की आराधना और सेवा कर रहे हैं, न कि सृष्टिकर्ता की। और जब ऐसा होता है तो आपका हृदय अंधकारमय हो जाता है। And that happens. God says, okay, you want to please that man and you don't want to please me? Okay, go right ahead. And then we fall into
all types of sins. तब परमेश्वर कहते हैं, अच्छा, अगर तुम उस मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हो और मुझे प्रसन्न नहीं करना चाहते तो ठीक है, करो। और तब हम हर प्रकार के पापों में गिर जाते हैं। That's why it's so important that we never give any place in our hearts for the creature which should be given to the Creator. इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने हृदय में किसी भी प्राणी को वह स्थान न दे जो केवल सृष्टिकर्ता का होना चाहिए। God Almighty must have first place in our heart. परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारे हृदय में प्रथम स्थान पर होना चाहिए। And then it says God gave them up to their degrading passions. You see, you go one step down and then you go another step down. फिर लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें उनकी लज्जात्मक वासनाओं में छोड़ दिया। देखिए, पहले एक कदम नीचे गिरते हैं, फिर दूसरा कदम और फिर और भी नीचे। And then women and men begin to have unnatural sexual relationships with their own sex. और फिर स्त्रियां और पुरुष अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने लगते हैं अपने ही लिंग के साथ। Instead of the way God created it to be, there's all types of homosexuality and indecent acts, and they receive in their own persons. जैसे परमेश्वर की रचना का तरीका नहीं था, इस प्रकार हर प्रकार की समलैंगिकता और अश्लील कर्म होने लगते हैं और वे अपने ही शरीर में अपने पाप का उचित दंड पाते The हैं। penalty of their error. That means their bodies begin to acquire diseases which they'd never have got if they had not gone into all these type of sins. इसका अर्थ है कि उनके शरीर में ऐसी बीमारियां आ जाती है जो कभी न आती यदि वे इन पापों में न पड़ते। And that's because God gave them up. And then thirdly, again it says in verse 28, because they didn't see fit to acknowledge God any longer, God gave them up to a depraved mind. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। फिर तीसरी बार वचन 28 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानना आवश्यक न समझा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निकृष्ट बुद्धि के हवाले कर दिया। To do those things which are not proper. ताकि वे अनुचित काम करे। That means many other things. This slippery slope of sin. इसका अर्थ है कई अन्य पाप का यह ढलान ऐसा है। When God gives them up stage by stage by stage by stage, they become filled with unrighteousness, wickedness, greed, evil, envy, murder, strife, deceit, malice. जब परमेश्वर उन्हें छोड़ देते हैं तो एक एक करके धीरे धीरे और गिरते जाते हैं। फिर लिखा है कि वे सब प्रकार के अन्याय, दुष्टता, लालच, बुराई, डाह, हत्या, झगड़ा, छल, कपट, निंदा से भर जाते हैं। Gossiping is mentioned as one of those things. Many Christians do it. Do you know it's a mark of a man whom God's given up that he goes around gossiping? निंदा यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित है। यह सोचने वाली बात है, बहुत से मसीह भी यह करते हैं। यह उस व्यक्ति का चिन्ह है जिसे परमेश्वर ने छोड़ दिया कि वह यहाँ वहाँ निंदा करते फिरे। When you see people gossiping, you know that the fellow has got lost contact with God. जब आप किसी की निंदा करते देखते हैं तो जान लें कि उसका परमेश्वर से संपर्क टूट चुका है। Slanderers, those who speak evil of others, haters of God, insolent, arrogant, boastful inventors of evil, disobedient to parents. Children, when you disobey parents, it's a serious thing. फिर लिखा है, निंदक, परमेश्वर से बैर रखने वाले, घमंडी, अभिमानी, डींग मारने वाले, बुराई के नए उपाय सोचने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। बच्चों का माता पिता की आज्ञा न मानना भी बहुत गंभीर बात है। Without understanding and untrustworthy, unmerciful and so on. They know that there's a death penalty for these crimes. God punishes such sins. वे बिना समझ के विश्वासघाती, निर्दयी और क्रूर बन जाते हैं और उन्हें पता है कि इन पापों के लिए मृत्यु का दंड है। परमेश्वर ऐसे पापों को दंडित करता है। But they do this and fellowship with other people who do these things. फिर भी वे इन्हें करते हैं और दूसरों के साथ मिलकर जो ऐसे ही काम करते हैं उनका साथ भी देते हैं। Let's take it seriously and really seek to establish and keep our contact with God by giving Him first place in our lives and by being thankful for all His mercies to us. इसलिए हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सच में यह प्रयास करना चाहिए कि हमारा संपर्क परमेश्वर से स्थिर बना रहे। इसके लिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना होगा और उसकी हर करुणा और आशीष के लिए धन्यवाद करते रहना होगा।